In April 2019, XPHP embarked on a 4,000 kilometers journey on two TVS Apache RR310s, powered by Castrol Power One and Apollo tires, with the support of TVS Racing. The ride started from Booth International Circuit and ended at Sholavaram A Strip near Chennai. In between, we also visited the Kari Motor Speedway in Coimbatore and also MMRT racetrack in Chennai. During the ride, we also spoke to a lot of people from the racing fraternity. The idea behind this ride was to find the roots of the Indian motorsports and also what lies in the future for it. So today what we're going to do is that we're going to take two RR310s on the Booth International Circuit, which marks the start of a ride called Tracing the Roots, in which we are trying to figure out what is the path that Indian motorcycling, specifically racing, will take in the future and how far we have actually come from the days of Sholavaram and then MMRT, Kari Speedway, and then finally an F1 class track in India right over here. I want something like the IPL to happen in India, but for motorcycling, for motorcycle racing. And I also want a couple of more tracks, at least one for East India and one for Central India. Is something what I think India deserves because it's come of age. I can't wait to ride the RR310 all alone. Actually not alone. There is a very distinguished, august gentleman here with me. His name is Gurvinder Singh, and I am a current champion, national champion in 1000cc JK टायर चैम्पियनशिप. ये बाइक काफ़ी अच्छी है, यंगस्टर के लिए काफ़ी अच्छी है, निम्बल है, अच्छी हैंडलिंग है. जो टायर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेसिंग के लिए. अपोलो स्टील रेडियल टायर्स काफ़ी अच्छे हैं, रोड्स के लिए भी, ट्रैक पे भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. Hi, my name is Kushagra Singer and I am from Lucknow, and I won this contest of XPHP Tracing the Roots. So as a contest winner, I got a chance to ride at the BIC on my Apache, and my experience of riding the Apache was really great, and the whole team of XPHP really helped me out in gaining the experience and everything. My name is Deepak. इस ट्रिप में 15 दिन का राइड होगा जो कि 3 रेस ट्रैक्स पर होगा. अब हम जा रहे हैं राइड के लिए, तो आई होप कि ये जो राइड है काफ़ी अच्छी रहेगी. It was a matter of great pride for us to flag off this ride from Booth International Circuit, which is India's biggest and the most modern racetrack. It also happens to be the only F1 class race circuit in the country. तो लीजिए, एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और हम चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर. और सबसे पहले आएगा आगरा और फिर उसके बाद सीधा हम निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए. इस राइड पर सुनील भाई मेरे साथ चल रहे हैं और 15 दिन का साथ रहेगा. आई होप कि मज़ा आएगा. So after riding at BIC, we continued our journey towards the other two racetracks down south. We rode in searing heat through Gwalior, Nagpur, Hyderabad, Bangalore, Madikeri,
Valparai, and finally we ended the ride at Sholawar Airstrip near Chennai. After riding at the Kari Motor Speedway in Coimbatore and also the MMRT in Chennai. दिल्ली से आगरा अगर आप जाना चाहते हैं ताज एक्सप्रेस वे के थ्रू तो आपको देने पड़ेंगे 205 रुपये एज ए टोल। तो शाम के बज चुके हैं भैया 6:15 और गऊ माता फिर सामने आ गई। चलो शुक्र है अपने आप चली गई माता जी। और धौलपुर यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया, ग्वालियर का तो अता पता ही नहीं है। सो दिस इज़ डीबी मॉल ऑफ ग्वालियर। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यार, ये देखिए दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। एक तरफ तो शॉपिंग मॉल है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, बाकी दूसरी साइड शॉप्स हैं और यहाँ पर अब दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। वाह, चलो जी, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार होटल ग्रेस पर हम पहुँच ही गए। Good morning everyone. Today is the day 2 of tracing the routes and today we are in Gwalior. In Gwalior we have a very special person with us. That person is very special because of a special reason. And what that special reason is, I'll tell you. हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे? विशेष निगम फ्रॉम ग्वालियर। हाँ जी, तो आपको पता चला ये क्यों विशेष है, क्यों स्पेशल है? बिकॉज उनका नाम ही विशेष है। विशेष है इसलिए। तो अगर आपको लाइफ में कुछ स्पेशल बनना है तो नाम विशेष रख लो। तो स्पेशल नाम ही विशेष रख लो। नो ऑफेंस, हम लोग हर कोई अपने आप में एक स्पेशल है, बट है ना, अनफॉर्चुनेटली वी वोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लोर इन ग्वालियर बिकॉज वी हैव टू लीव। बट देखते हैं जितना भी कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट अभी डिसाइडेड नहीं है। हाँ, वैसे हम लोगों को नरसिंहपुर जाना है, बट देखते हैं जहाँ तक पहुँचे। हाँ, जहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज का वैसे कोई फिक्स टारगेट नहीं है। हो सकता है बहुत है यहाँ पे। सागर में रुक जाए, गर्मी बहुत है यहाँ पे। Extreme बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है सागर में रुक जाए, हो सकता है छिंदवाड़ा तक पहुँच जाए। भाई साहब, पूरा का पूरा रोड जगह जगह खोद रखा है यहाँ पर। वो देखिए कार, देखिए कहाँ से आ रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या बवाल काट रखा है यहाँ पे। The Apollo Alpha H1 tires not only perform beautifully on the race tracks and long highways, but also on the bad roads like this. फुल गर्मी, पसीने, प्यास से हाल बेहाल हो चुका है और आगे का पूरा रास्ता ही ऐसे ही है। शुक्र है रास्ता दिखा। ओह माय गॉड, फाइनली। Hey guys, good evening. We haven't decided today's destination, so we'll stop wherever we want to. But as of now, we are targeting Sagar or Narsinghpur. Right now, where we are is a beautiful dam reservoir. This is Shehzad Dam reservoir. I think we are in Madhya Pradesh, but Google says that this place is in Uttar Pradesh. So, not really sure where we are exactly right now. Maybe it's the heat that is making us confused. But anyways, it's a beautiful place. बाकी आज का दिन बहुत ही गजब का गुजरा, मज़ा आया।
काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। इनफैक्ट कल वाले दिन से ज़्यादा मुझे आज मज़ा आया, एंजॉय किया, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ वगैरह भी देखने को मिले और फिर इतने शानदार रोड्स, और ऊपर से ये गाय माता बहुत सारी रोड पर ये देखो एक और गुजरी, ये देखो कैसे भाग के गुजरी है। मतलब मध्य प्रदेश में ये सीन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जगह जगह गाय मरी पड़ी है इसी चक्कर में, एक और मरी हुई थी। तो मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से आप थोड़ा सा देखकर चलाइएगा, स्पीड को मेंटेन करके रखिएगा। Guys, so this is the day 3 of tracing the routes, and today we are going from Sagar in Madhya Pradesh to Nagpur in Maharashtra. Behind me you can see one beautiful road. This is National Highway 47 and it looks nothing less than a racetrack. We found this after riding for almost the entire day yesterday on bad roads, extremely bad roads. So this is a welcome change. तो यार प्यास लग रही है और एक बाबा जी बैठे हुए हैं पानी पिलाने के लिए, तो उनके पास चलते हैं, पानी पीते हैं और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। जय राम जी की। ओहो हो, ये क्या चीज़ है? ये बटन हैं? बटन ही है? अच्छा, एक बार थोड़ा सा हाथ धुला दो पहले। सात साल हो गए आपको पानी पिलाते हुए यहाँ पे? अरे बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हो आप। चलो, This is one beautiful highway, one beautiful stretch of road. The heat is too much and it is excruciatingly painful. You can see Deepak bhai standing under the shadow of this small tree. We have only this tree, very small, on the side of the road, and it is providing us much needed relief. You can see, right? As usual, it's a very hot day and the road today is very beautiful. One of the best that we have seen on this road so far. It's a beautiful undivided road, but it's a mountainous road, curvy, so we're getting a lot of fun, and the Apollo H1 tires are really helping here a lot. Throughout central India, the weather remained extremely hot and dry during this ride. But even in conditions like these, Castrol Power One helped the bikes maintain the same level of performance and acceleration. रोड्स तो बहुत ही शानदार हैं यहाँ के, बहुत ही शानदार। मतलब एमपी के रोड्स पर तो मैं फ़िदा हो गया। बाकी कल जहाँ से निकले थे थोड़ा बहुत पैच ख़राब था, लेकिन ऑल इन ऑल एमपी के रोड्स ने समा बांध दिया। 30 किलोमीटर रह गया नागपुर, तो मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है यार कि जल्दी से हम नागपुर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कुछ राइडर्स हमें मिलने वाले हैं। बाकी इस हाईवे से हम यहाँ पर आए हैं और रुके हैं न्यू माइलस्टोन, एक रेस्टोरेंट ऑन द हाईवे था। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, फाइनली वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स नागपुर नाउ, मतलब पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दीपक को तो आप सब जानते हैं, शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम सुनील है एंड आई बिलोंग टू xbhp.com, which is we call India's biggest motorcycling platform. तो xbhp has been there for last 15 years, 16 years now. जब फेसबुक भी नहीं था तो xbhp used to be the Facebook of bikers. अभी भी है, हम लोगों का फोरम है xbhp.com. हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर जब नई नई मोटरसाइकिल लेते हैं, तो आजकल बहुत सारी पावरफुल मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं, स्पेशली ड्यूक्स ऑफ नागपुर, आप जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है, पावर आ गई हाथ में तो सड़कों पे भगाओ, एंड देन दे गेट इनटू स्ट्रीट रेसिंग, ये वो इलीगल। दूसरा पार्ट है हमारा मोटरस्पोर्ट्स का। इंडिया में मोटरस्पोर्ट को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया नहीं जाता। बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जो लोग इवन बाइकिंग कम्युनिटी में भी, कि ठीक है बाइक्स पसंद है, बाइक चलाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि यार आप किसी मोटरस्पोर्ट एथलीट को जानते हो, तो शायद 40-50% लोग होंगे जिनको नाम भी नहीं पता होगा इंडिया में। आइडिया हमारा ये था इन दोनों चीज़ों को मिला के कि एक तो यार जो लोग
रोड पे रेसिंग करते हैं उनको ये समझाया जाए कि ये गलत है और मोटर स्पोर्ट को प्रमोट किया जाए। तो इन दोनों को कि आप रोड पे रेस ना करके ट्रैक पर रेस करो। तो ये आइडिया था ट्रेसिंग द रूट्स। थैंक यू। हम पहुंच चुके हैं नागपुर और यहाँ के जो राइडर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। तो भाई लोगों, माहौल कैसा है?